السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو ایشوز ہیں جن پر آج بات کروں گا۔ ایک تو اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا ایشو ہے، جس پر آج قومی اسمبلی میں بحث چلی ہے۔ اپوزیشن کی جماعتیں، حکومت نے اپنا موقف بھی دیا ہے اور اس پر کیا کچھ ہوا قومی اسمبلی میں، اس پر بھی بات کروں گا۔ دوسرا جو جعلی پائلٹس کا ایشو ہے، اس پر بھی حکومت نے اپنا موقف دیا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کے ممبران کے درمیان جو ہے تو میں بھی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اس دونوں ایشوز پر، مندر کی تعمیر کا ایشو بھی اور اس کے علاوہ جعلی پائلٹس کا ایشو بھی۔ اس پر غلام سرور خان جو ہیں وزیر ہوا بازی، انہوں نے اپنا بیان دیا ہے، پالیسی بیان، اور اس میں بہت ہی انفارمیشن دی ہے کہ کیا کیا کارروائی کی ہے، اقدامات کیے ہیں۔ یہ دونوں ایشوز ہیں، لیکن ان ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، مندر کا ایشو اس طرح ہوا کہ خواجہ آصف نے معاملہ یہ قومی اسمبلی میں آج اٹھایا۔ آج کیونکہ برہان وانی کی شہادت کا دن تھا اور انڈیا کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی خواجہ آصف نے معاملہ اٹھایا، اور جو مساجد شہید کی جا رہی ہیں انڈیا کی جانب سے کشمیر میں، ان پر بھی احتجاج کیا، مذمت کی، اور اسلام آباد میں جو مندر کی تعمیر کا معاملہ ہے وہ بھی معاملہ اٹھایا۔ خواجہ آصف اور شیریں مزاری یہ دونوں نے ہم آواز تھے، پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ تھی، حکومت بھی تقریباً، یعنی آج ہم نے یہ نوٹ کیا کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ ایم کیو ایم بھی، یہ جماعتیں ایک ساتھ تھیں۔ ان کا موقف تقریباً ایک ہی تھا مندر کی تعمیر کے حوالے سے کہ مندر کی تعمیر ہونی چاہیے۔ ایم ایم اے کے جو ممبران ہیں انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور ایم ایم اے کو، جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے ممبران کو کیا اعتراض ہے، علماء کو کیا اعتراض ہے، وزیر مذہبی امور کیا کہتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خواجہ آصف نے یہ معاملہ اٹھایا اور یہ کہا کہ مندر کی تعمیر ہونی چاہیے، اور مندر کی تعمیر کے سلسلے میں خاکے بنائے جا رہے ہیں مندر اور ہندوؤں اور اقلیتوں کے حوالے سے، ان کے خلاف، جس کی ہم اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اسی لیے ہمیں یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب شیریں مزاری کا یہ کہنا تھا کہ اگر بھارت مسجدیں شہید کر رہا ہے کشمیر میں، یا بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ مظالم کر رہا ہے، تو وہی اگر ہم، یعنی جو بھارت اپنے اقلیتوں کے ساتھ وہاں پر کر رہا ہے، اگر پاکستان میں ہم اپنے اقلیتوں کے ساتھ وہی بھارت والا ہی سلوک کریں گے تو بھارت اور ہم میں کیا فرق رہے گا۔ تو یہ بات انہوں نے کی۔ اس کے بعد خواجہ آصف کی تقریر کے دوران جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی ہیں، ان کے دونوں کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ خواجہ آصف نے ایک بات کی جس پر عبدالاکبر چترالی نے اعتراض کیا۔ عبدالاکبر چترالی، پھر خواجہ آصف نے بعد میں وضاحت کی کہ میں نے یہ بات اس طرح نہیں کی تھی، آئینی پیرائی میں کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ چلیں، یہ معاملہ پھر آگے چلتا رہا۔ وزیر مذہبی امور نے جو ہیں نور اللہ قادری، انہوں نے وضاحت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ مندر کا، اسلام آباد میں جو مندر تعمیر ہو رہا تھا، یہ کچھ لوگوں نے شوشہ زیادہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو سوشل میڈیا میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اس طرح، لیکن ابھی اس وقت اس مندر کی تعمیر پر کام رکا ہوا ہے، کام بند ہے۔ وہ اس لیے بند ہے کیونکہ سی ڈی اے سے نقشہ، جو بائیلاز ہیں اس سی ڈی اے کے، ان کے تحت نہیں تھا، نقشہ اپروو نہیں کرایا گیا تھا، اس وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ فنڈز کا معاملہ جہاں تک تھا کہ، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ابھی اسلامی نظریاتی کونسل کو ہم نے یہ معاملہ بھیج دیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لی ہے، اور رائے کس بات پر لی ہے؟ سوال یہ بنتا ہے، جو عبدالاکبر چترالی، ایم ایم اے کے لوگوں نے آج اسمبلی میں بھی، میں نے خود بھی اس کو رپورٹ کیا،
वहाँ पर मौजूद था। उनका ये कहना था कि चलें, आप अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तो इस्लाम में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या बैतुल माल के पैसों से, ये सवाल ये बनता है, क्या बैतुल माल के पैसों से आप मंदिर तामीर कर सकते हैं? ये क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि अवामी जो पब्लिक फंडिंग होती है, अवामी पैसा होता है, बैतुल माल अवाम का, गरीबों का पैसा है ना, मतलब ये तो इस पर तो बड़े सवालात, ये एक इस्लामी एक बहस है, एक उलमा के दरमियान बहस अब चल पड़ी है कि गरीबों का पैसा, बैतुल माल का पैसा यानी गरीबों का पैसा, ये मंदिर की तामीर के लिए ख़र्च किया जा सकता है या नहीं। ये सवाल था MMA के मेंबरान का, जिस पर वज़ीर मज़हबी उमूर ने कहा कि हमने यही सवाल वज़ीर आज़म के सामने रखा और वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजा जाए। वहाँ पर अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत, जमीयत देवबंदी, मकतब फ़िक्र के, अहले हदीस के, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मौजूद हैं। वहाँ पर वो अपनी राय देंगे कि बैतुल माल के पैसों से, पब्लिक फंडिंग से, गरीबों के पैसों से मंदिर पर ख़र्च किया जा सकता है या नहीं। ये जब मामला आएगा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के बाद हम फैसला करेंगे, और जो भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फ़ैसला होगा वो वज़ीर आज़म भी कबूल करेगा, वज़ारत मज़हबी उमूर भी कबूल करेगी और हुकूमत पाकिस्तान भी कबूल करेगी। ये उन्होंने वजाहत की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल ये काम बंद है। फिर उन्होंने इस्लामी तारीख़ हवाले दिए अक़लियतों के हवाले से कि रियासत मदीना में 12 रुकनी के ईसाई जो वफ़द आया था उनको मस्जिद नबवी में ठहराया गया था, और फिर जब उनकी इबादत का टाइम हुआ, ये वज़ीर मज़हबी उमूर ने कहा, नूरुल्लाह क़ादरी ने आज कौमी असम्बली में, तो इबादत का टाइम हुआ तो उनको इबादत भी मस्जिद नबवी में करने की इजाज़त दी गई थी रियासत मदीना में। तो इस्लाम ज़ाहिर है अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तो करता है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास मामला चला गया है। ये एक मामला ये हुआ था। दूसरा मामला जो जाली पायलट्स वाला है, वो भी आपको बताऊं कि ग़ुलाम सरवर ख़ान जो हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, इस पर एहतजाज किया, एक तवज्जो दिलाओ नोटिस था अपोजिशन का और उस पर उन्होंने जवाब दिया है। फिर उनके साथ भी उनके इस बयान के दौरान, पॉलिसी बयान जब दे रहे थे, अपोजिशन झूठा झूठा के नारेबाजी करती रही, क्योंकि ये इनका इल्ज़ाम जो रिपोर्ट पेश कर रहे थे ग़ुलाम सरवर ख़ान, ये इल्ज़ाम बार बार नून लीग और पीपल्स पार्टी पर लगा रहे थे कि ये 2008 से ये जाली पायलट्स की भर्ती शुरू हुई, और लोगों ने जो पायलट ये भर्ती हुए थे, ये 262 पायलट थे जिनकी डिग्रियां जो हैं मशकूक करार दी गई थी। उनमें से 102 को जो है ग्राउंड कर दिया गया था, हटा दिया गया था, यानी वो जहाज़ नहीं उड़ा रहे थे। और 54 तकरीबन 54 जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और 28 को बरतरफ किया गया है गुज़श्ता रोज़ ही। ये उन्होंने कौमी असम्बली में रिपोर्ट दी है, जिस पर उनका ये कहना था कि इन लोगों ने, इन पायलट्स ने अपनी जगह पर दूसरों से इम्तिहान दिलवाए थे, यानी खुद इम्तिहान में भी नहीं बैठे, पेपर भी नहीं दिए, दूसरों ने इनके इम्तिहानात पास किए और इस तरह जाली भर्तियां की गई, पैसे देकर ये पायलट बने थे और हमने इनको हटा दिया है, कार्रवाई की है। और ये जो जहाज़ हादसा हुआ है इसके बाद ये हमने इंक्वायरी की है। अपोजिशन ने शोर मचाया कि अच्छा तो ये जहाज़ हादसा न होता तो फिर आप इंक्वायरी न करते, मतलब ये अगर जाली थे तो 2 साल आप खामोश बैठे रहे, 2 साल तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर वो वजाहतें करते रहे, लेकिन उनके इल्ज़ामात नून और PP पर थे। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का नाम लेकर भी कहा कि जो टॉप 10 जो करप्ट वज़राए आज़म हैं, नवाज शरीफ का नाम उन टॉप 10 करप्ट वज़राए आज़म में आता है। और मैं बुरे को बुरा कहूँगा, झूठे को झूठा कहूँगा, झूठे पर अल्लाह की लानत है, जो करप्ट है तो हम उसको करप्ट ही कहेंगे। ये इस तरह की बातें की हैं उन्होंने। कुछ जुमले मैं पढ़कर सुनाता हूँ जो सरवर ख़ान ने, ग़ुलाम सरवर ख़ान ने जो कौमी असम्बली में आज वजाहत दी है, बहुत इम्पॉर्टेंट वजाहत है, फिगर है उसमें, मैं बताता हूँ आपको। एक तो इन्होंने कहा कि माजी में भी ऑपरेशन मुअत्तल होते रहे हैं, ये सिलसिला कोई 2008 के बाद शुरू हुआ है। हालिया जहाज़ हादसे में पायलट की गलती सामने आई।
हक़ाइक़ से पर्दा उठाता हूं तो हमारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, माइंड कर जाते हैं। गुज़श्ता साल इंक्वायरी बोर्ड में जाली डिग्रियों का मामला, जाली डिग्रियों की तादाद जो है वो बढ़ती गई। इदारों को ठीक करना और गुज़श्ता हुकूमतों की गंदगी को साफ़ करना भी हमारी ज़िम्मेदारी में आज आ गया है। 2008 से 2018 तक PIA का खसारा बढ़ गया और 1 साल 4 माह की फोरेंसिक इंक्वायरी के बाद 262 पायलट्स की डिग्रियां मशकूक करार दी गई। मुख्तलिफ एयरलाइंस के 102 जो हैं पायलट्स ग्राउंड कर दिए। अब तक 54 के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है और अब तक 28 को बरतरफ कर दिया गया है। अपनी जगह दूसरों को इम्तिहानात देने वाले 26 के खिलाफ लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। अब तक 34 को मुअत्तली के लाइसेंस मुअत्तली का नोटिस भेज दिया गया है। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के ख़िलाफ़ भी तहकीकात कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात एयरलाइंस के 54 पायलट्स में से 48 जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। इसी तरह वियतनाम एयरलाइंस वाले 11 में से जो हैं 9 क्लियर हो गए हैं पायलट्स और बहरीन एयरलाइंस के 4 में से 2 क्लियर हो गए हैं। मलाइशियन और तुर्क एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स पर भी तहकीकात कर रहे हैं। 54 पायलट्स के ख़िलाफ़ कल एक्शन लिया है। मलाइशिया, तुर्की, वियतनाम, मिस्र, बहरीन ने भी लिस्ट भेजी है, उस पर भी काम कर रहे हैं। गलत तरीक़ों से इम्तिहानात पास कराए गए और पैसे देकर नौकरियां ली गई। मुल्क में छोटी और बड़ी चोरियां बहुत सी होती हैं। जहाज़ इनके दौर में गायब होते रहे और अगर ये मज़ीद रहते तो ये PIA को भी गायब कर देते। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। ये उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो है जाली पायलट्स भर्ती किए, पैसे लेकर इनको भर्ती किया गया और ऐसे पायलट्स भर्ती किए गए जो जिन्होंने इम्तिहान भी खुद पास नहीं किया और दूसरों को इम्तिहानात में बिठाया। नून लीग की शाइस्ता परवेज़ और बाकी जो पीपल्स पार्टी के हैं उन्होंने शोर शराबा किया, नारेबाजी करते रहे गुलाम सरवर खान की तकरीर के दौरान कि झूठ बोल रहा है। इन्होंने ये कहा कि PTI जो अपोजिशन है, अपोजिशन के लोगों ने ये कहा कि PTI मुल्क की बदनामी का बायस बन रही है। जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम भी किया था गुज़श्ता रोज़, उसमें भी ये बताया था कि अपने ही मुल्क की बदनामी यानी इंटरनेशनल आलमी फोरम्स पर ये खुद कर रहे होते हैं कि भैया हम चोर हैं, हमारे भाई चोर हैं, हमारे घर में रहने वाले लोग चोर हैं, हम करप्ट हैं। ये वज़ीर आज़म क्या कहते रहे हैं आलमी फोरम्स पर, अपोजिशन सारी करप्ट है, हमारे मुल्क में करप्शन इंतहा पर पहुंची हुई है, एहतसाब नाम की कोई चीज़ नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है, तालिबान को तो तरबियत हमने दी हुई है, मतलब पता नहीं क्या क्या वज़ीर आज़म बोल रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है ये बदनामी तो हो रही होती है। ये जाली पायलट्स का इशू भी हमारे हुक्मरानों ने खुद ये शुरू किया हुआ है, खुद एतराफ़ कर रहे हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी का बायस तो बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बड़ी ढिठाई के साथ कह रहे हैं कि भैया हम तो गंद साफ़ करने आए हैं, हम शफाफियत लाने आए हैं, हम इदारों को बेहतर करने आए हैं। अभी तक 2 सालों में इदारे बेहतर नहीं हुए, किसी इदारे में बेहतरी नहीं आई, इदारे तबाह होते जा रहे हैं। दिन ब दिन हर आए दिन इदारे तबाह होते जा रहे हैं। कोई एक इदारा, मेरे व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई एक इदारा बताया जाए जिसमें कोई PTI ने बेहतरी लाई हो। PTI ने हर इदारे का हशर जो है BRT जैसा कर दिया है, हर इदारे को BRT बना दिया है। तो अपोजिशन का ये मौक़िफ़ किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि PTI के हमारे हुक्मरान जो हैं मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं, बेहतरी की कोई उम्मीद इनमें से नहीं की जा सकती। तो ये आज को कौमी असम्बली में कार्रवाई थी मंदिर के हवाले से और जाली पायलट्स के हवाले से, वो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।